Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, good morning. I hope you all are fine. This is your general science class. In previous class you have learned about unit number 2, microorganism, and I hope you understand all concepts. In this class we will start a new unit, which is unit number 3, that is seed structure and germination. Before going to our topic, we will discuss some points. So let's start. So these are some points. The first one is plants. Plants are living organisms. They are usually in green color and they can prepare their own food. Is it clear? So the next one is growth of plant. How plant can grow? A plant can grow by a seed. This is a seed. First of all, roots will appear to absorb nutrients and water from the soil surface, and then shoot will appear. On shoot, leaves will appear to get energy from the sunlight to prepare their food in the process of photosynthesis. Now, what is photosynthesis? The photosynthesis is a process in which green plants prepare their food in the presence of sunlight. After leaves, flower will appear again. Flower will produce seeds, and then these seeds will again grow a new plant, and this is the life cycle of plant. Again seed will become in a flower. Is it clear? So the next point is monocot plant and dicot plant. Monocot plant. Mono represents one. Mono means one. The plant having only one cotyledon in their seed are known as monocot plant. For example, wheat, maize. Dicot plant. Di means two. Di represents two. The plants having two cotyledon in their seed, for example, bean seed, pea, mango, etc. So now we are moving towards our today's topic, that is introduction to seed. As we are starting unit number 3, seed structure and germination. So we are starting from the introduction. As we already discussed about the plants, that plants are the living organism which can live both on water and on land. Is it clear? Most of the plant start their life from a seed. Students, साथ साथ अंडरलाइन करें न्यू वर्ड्स को. ठीक है, seed. The seed grows into new plant. This plant produce root, stem, leaves, and then flowers. Flower again produce seed, and this cycle repeat itself. Itself यानी खुद ब खुद ये प्रोसेस दोबारा होगा. स्टूडेंट्स, हमने बात की यहाँ पर कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि मोस्टली आपके पास जो प्लांट हैं ये स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रोथ सीड से. ठीक है, दिस इज़ अ सीड. मोस्टली प्लांट अपनी ग्रोथ सीड से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ देखें कि जैसे सीड जो है फर्दर ग्रो करेगा. कुछ दिन अगर हम इसको उगा के छोड़ते हैं तो ये देखें छोटा सा यहाँ पे एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ग्रो करता है. अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट और द यंग प्लांट इनसाइड द सीड. अब एम्ब्रियो से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉटिलेडन. ठीक है, ये कॉटिलेडन पार्ट है जहाँ जो कि यंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ से देखें कि सीड से एक शूट सी इमर्ज होगी, जिससे आपके पास सबसे पहले किसकी ग्रोथ होगी? रूट्स अपीयर होंगी. ठीक है, ये रूट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ देखें फाइनल प्रोसेस में रूट्स निकलती हैं, और फिर रूट से स्टेम निकलेगी, और स्टेम से फिर क्या है? लीव्स अपीयर होंगे, जो कि सनलाइट से लाइट लेकर ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ये पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्लावर बनेगा, और यही फ्लावर दोबारा से किसकी फॉर्मेशन करेगा? सीड बनाएगा, एंड देन दोबारा ये लाइफ साइकिल इसी तरह से चलेगा. ठीक है, पहले आपके पास सीड, देन सीड से एम्ब्रियो बनेगा, यंग प्लांट, और फिर यंग प्लांट से रूट्स निकलेंगी, देन स्टेम, फिर लीव्स, देन फ्लावर, एंड देन दोबारा से सीड. इज इट क्लियर?
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 37 पर एक एक्टिविटी है जो कि हम यूनिट नंबर 1 में परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉटिलेडन on the basis of types of seed. On the basis of number of cotyledon, seeds are divided into two main types. Now what is cotyledon? Cotyledon is the softened part of the seed which provide food for young plants, ठीक है, which provide food to young plant. देखिए अब आपके पास जैसे ये मैंगो सीड है या ये बीन सीड है, तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टन पार्ट है, ये सॉफ्टन पार्ट को हम कहेंगे कि ये आपके पास कॉटिलेडन है। Students, we are talking about the types of seed. So first one is monocotyledonous seed and the second one is dicotyledonous seed. ठीक है, monocotyledonous seed, dicotyledonous seed. So first of all, we will discuss monocotyledonous seed. Mono represents one. Mono means one. ऐसे seed जहाँ पर single cotyledon हो. Is it clear? The seed which have only one cotyledon are called monocotyledonous seed or simply monocot seed, ठीक है। अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ न्यू वर्ड्स कॉटिलेडन, कॉटिलेडनस, ठीक है, कि मोनोकॉटिलेडन्स या फिर मोनोकॉट सीड ऐसे सीड्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीन सीड में 2 कॉटिलेडन्स हैं तो मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन मौजूद होगा, ठीक है। For example, wheat, rice, maize, barley. These are the examples of monocot seed. Look at the picture. Wheat, maize, barley. Gandam, maize, मकई and barley, जौ। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मोनोकॉट प्लांट की किसी एक एग्जाम्पल की कि जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, विच इज मैज, स्ट्रक्चर ऑफ मैज सीड, ठीक है, पेज नंबर 38 हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैज सीड की। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास कुछ सीड्स हैं, इनमें हमारे पास कुछ सीड्स हैं लाइक आपके पास ये है मैज सीड, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैज सीड है, ठीक है। इसके बारे में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। द ग्रेन ऑफ मैज इज सराउंडेड बाय अ थिन कवर कॉल्ड टेस्टा। यहाँ पर आप टेस्टा की हेडिंग पुट करेंगे या फिर सीड कोट। टेस्टा को हम एक और नाम दे सकते हैं विच इज सीड कोट, ठीक है, कि आपके पास जो मैज सीड है इसको थिन लेयर कवर करती है जिसको हम कहते हैं टेस्टा। यहाँ देखें ये सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है आपके पास जो थिन सी लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, सीड कोट या टेस्टा। It cannot be separated easily. अब ये जो सीड कोट है या टेस्टा है इसको हम आसानी से अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। अ ग्रेन ऑफ मैज कंटेन्स ओनली 1 कॉटिलेडन। यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन मौजूद होता है। अब यहाँ देखें कि ये आपके पास सीड है मैज का, यहाँ पर सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको मोनोकॉट सीड कहते हैं। व्हेन इट इज कट इनटू 2 पीसेस येलो कलर्ड एम्ब्रियो कैन बी सीन। अब सबसे पहले आप बात करेंगे कि व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आपके पास यंग प्लांट है इनसाइड द सीड। अब यहाँ देख लें ये आपके पास जो शाख से इमर्ज हुई हुई है, छोटी सी सरफेस इमर्ज हुई हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, ये एम्ब्रियो है जो कि सबसे पहले न्यू प्लांट जो सीड से निकलता है, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय अ मटेरियल कॉल्ड एंडोस्पर्म। और इसके साइड पे ये जो मटेरियल आपके पास है इसको हम कहेंगे, फर्स्ट लेयर जो है ये एंडोस्पर्म है और ये आपके पास ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे ये कॉटिलेडन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो थिन लेयर है इसको हम कहेंगे ये सीड कोट है। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, जब आप मैज सीड को ओपन करते हैं तो यूजुअली आपको येलो कलर के एक छोटा सा वहाँ पे सरफेस, येलो कलर की सरफेस सी आपको नज़र आती है, तो वो सरफेस आपके पास क्या होती है, एम्ब्रियो होता है। असल में उसी एम्ब्रियो से येलो सरफेस से आपके पास न्यू सीड निकलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो है येलोइश सरफेस है जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो है, किधर,
मैश सीड के अंदर, ठीक है। और इसकी ये जो फर्स्ट कवरिंग है, इसके अंदर जो ये वाली लेयर है जो लाइट कलर की, इसको हम कहेंगे ये एंडोस्पर्म है। और उसके बाद ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास कॉटिलेडन है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो ब्राउनिश कलर आपको या येलोइश कलर नज़र आ रहा है, ये सीड कोट है। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट टर्म इज डाइकोटिलेडनस सीड। डाई रिप्रेजेंट्स टू, दो दाला बीज। डाई मीन्स टू, ऐसे बीज जहाँ पर नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स कितने होंगे? 2, ठीक है। जिन बीज के अंदर नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स 2 होंगे उनको हम डाइकोटिलेडन्स कहेंगे, ठीक है। द सीड विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है, 2 कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन सीड। इज इट क्लियर? कि ऐसे सीड जहाँ पर आपके पास 2 कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं, लाइक बीन सीड है, आप जो है यूजुअली मटर को खोलें तो उसके अंदर आप देखेंगे 2 कॉटिलेडन्स आपको नजर आएंगे, या मैंगो को देखें, ठीक है, इनकी 2 कॉटिलेडन्स आपको नजर आएंगे, विच इज डाइकोटिलेडन सीड। यहाँ पर आप देख लें कि ये आपके पास ग्रेन सीड है। जब इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये 2 सेपरेट इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर जो थिन लेयर है, ठीक है, ये जो थिन सी लेयर है, ये आपके पास क्या है? ये सीड कोट है। और ये जो 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं ग्रेन, ठीक है, तो ये ग्रेन आपके पास क्या है? डाइकोट प्लांट है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपके पास डाइकोट प्लांट है जो कि इक्वली हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। या फिर ये देखें, ये आपके पास बीन सीड है, ठीक है, सेम लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास फ्रेंच बीन सीड है जो कि आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम कहेंगे ये आपके पास डाइकोट है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, छोटा सा आपके पास एक मटेरियल सा निकला हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल आपके पास क्या है? ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जहाँ से आपके पास यंग प्लांट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इज इट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। The examples of dicotyledonous seed is French bean seed, graham, pea, mango, etc. ठीक है, आप कह सकते हैं कि डाइकोटिलेडनस सीड की एग्जाम्पल है मैंगो, लेमन, पी, ग्रेम और द फ्रेंच बीन सीड्स। हर वो सीड जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में ऑटोमेटिकली कट हो सके उसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडनस सीड, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, ठीक है। हम बीन सीड को स्टडी करते हैं डीपली। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बीन सीड की, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि हम बात करेंगे टेस्टा की, ठीक है, टेस्टा या सीड कोट की। द टेस्टा और सीड कोट इज अ थिन एंड ब्राउन कलर्ड विच कैन बी रिमूव इजीली, ठीक है। जो आपके पास मोनोकॉट प्लांट्स है उनका सीड कोट इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन डाइकोट प्लांट का टेस्टा हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ देखें कि आपके पास कुछ बीन सीड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये मैंने सेपरेट करके रखा है, इसका जो है ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ये थिन लेयर, ये क्या है? ये टेस्टा है, ठीक है। ये थिन लेयर जो आपके पास प्रेजेंट है बीन सीड की, ये आपके पास टेस्टा है, ठीक है। इट हैज़ 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इट हैज़ 2 कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, ठीक है, कि 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं। बिटवीन द कॉटिलेडन्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आपके पास पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यंग प्लांट है सीड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये 2 कॉटिलेडन्स के बिटवीन ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये पार्ट आपके पास है एम्ब्रियो। इज इट क्लियर? अब यहाँ ओरिजिनल सीड में भी आप देख लें कि ये जो पार्ट आपके पास नज़र आ रहा है आपको, ये पार्ट क्या है? ये आपके पास एम्ब्रियो है, ठीक है। ये आपके पास एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें, जो स्टार्ट जहाँ से एम्ब्रियो है, जो सीड से इमर्ज हुआ हुआ है, इसको आप कहेंगे रेडिकल, ठीक है। जहाँ से सीड से एम्ब्रियो इमर्ज हुआ है इसको आप रेडिकल कहते हैं। और ये जो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप कहेंगे प्लोम्यूल, ठीक है, रेडिकल, प्लोम्यूल। ये आपके पास आउटर कवरिंग सीड कोट है और ये जो सरफेस है येलोइश सी, ये आपके पास कॉटिलेडन्स है, ठीक है। अब ओरिजिनल सीड पे देखें तो यहाँ पे ये जो सरफेस है आपके पास, ये प्लोम्यूल है। यहाँ से ये जो अपीयर हुआ है ये रेडिकल है, ये कॉटिलेडन है
और उसके बाद ये जो सरफेस है साइड से जो अपीयर हुई हुई है ये सीड कोट है। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट। दिस एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर द सीड इज सोन। सब आप बीज को इस फॉर्म में बोते हैं ज़मीन में, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट इमर्ज होता है। ठीक है, एम्ब्रियो से फिर दोबारा से नया प्लांट बनता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सीड्स देख लें स्टूडेंट्स आप, ये कुछ सीड्स हैं जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपके पास बीन सीड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बीन सीड्स जो कि डाइकॉट हैं। उसके बाद ये ग्रैम सीड्स हैं। ठीक है, जो कि आपके पास डाइकॉट हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये भी ग्रैम है, ये आपके पास फ्रेंच बीन सीड है जो कि आपके पास डाइकॉट है। उसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो ये आपके पास है राइस विच इज़ मोनोकॉट, वीट विच इज़ मोनोकॉट। उसके अलावा जो मेज़ का सीड हमने अभी तोड़ के इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो ये आपके पास क्या है? मेज़ है। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ कॉटिलेडन्स। Students, why cotyledon is so important in seed? Cotyledon is very important in a seed because cotyledon protect the baby plant or embryo inside the seed. जब आपके पास cotyledon जो है, ये cotyledon के अंदर आपके पास embryo होता है और cotyledon क्या करता है कि embryo को protect करता है। ठीक है, बाहर की इफेक्ट से protect करता है। उसके बाद cotyledons provide food to embryo until it become able to prepare its own food from its own leaves. जब आप सीड को यहाँ पे देखिए बोते हैं तो स्टार्ट में सीड जो है वो ग्रो नहीं करता, जस्ट इसकी जो है छोटी छोटी आपके पास रूट एंड शूट्स निकलती हैं। लेकिन जब तक लीव्स जो है, लीव आपके पास ग्रीन कलर है प्लांट का, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। ठीक है, तो जब तक पौधा खुद फूड बनाने के काबिल नहीं हो जाता, एम्ब्रियो जो है, ये कॉटिलेडन जो है, ये यंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड फूड फॉर एम्ब्रियो, सो कॉटिलेडन्स स्टोर्ड फूड फॉर एम्ब्रियो। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉटिलेडन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट जो मिसिंग हो वो दोबारा क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन इज प्लांट। प्लांट्स आर living organism which can prepare their own food, and plants are usually in green color. Now move toward the cotyledon. What is cotyledon? Cotyledon is a softened part inside the seed which protect the baby plant and provide food for baby plant or embryo. Their function is to store food for embryo or young plant. And the last point is types of seed. There are two types of seed, that is monocot seed and dicot seed. In mono represents one, cot represents cotyledon. The plant and the seed having only one cotyledon is known as monocotyledon seed or monocot seed or monocotyledonous seed. Di means two. Di represents two. The seed having two cotyledon इन देयर सीड। ठीक है, सीड में जब दो कॉटिलेडन्स होंगे तो उसको हम कहेंगे डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड की एग्जांपल हमने स्टडी की थी वीट, मेज एक्सेट्रा, एंड डाइकॉट में मैंगो, फ्रेंच बीन सीड एंड लेमन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक छोटी सी होम असाइनमेंट है। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इस असाइनमेंट को। सीड जर्मिनेशन इन ग्लास बाय यूजिंग कॉटन बॉल। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आपने डिस्पोजेबल ग्लास लेने। ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लास लेके सबसे पहले आपने उसमें कॉटन बॉल्स यूज़ करनी है। ठीक है, लाइक आपने ये कॉटन बॉल्स लेनी है, इसमें आपने इस तरह से छोड़ देनी है। ठीक है, ये आपने कॉटन बॉल्स ली, इसके ऊपर आपने ऐड करना है वाटर। आपने इतना वाटर ऐड करना है कि कॉटन बॉल्स में डिप हो जाएं। फिर आपने इसमें ग्रैम सीड्स ऐड करने हैं। आपने इस तरह से ग्रैम सीड्स ऐड कर देने। ठीक है, अगेन आपने इस पर कॉटन बॉल्स ऐड करनी है। इस तरह से आपने कॉटन बॉल्स ऐड कर देनी है। ठीक है, अगेन आपने इसके ऊपर वाटर डालना है। आप इतना पानी डालेंगे कि ये इजीली जो है इसमें डिप हो जाए। इज इट राइट?
ठीक है। अब आपने इसको देखें, आपके पास इस तरह से हमने तैयार कर लिए, ठीक है, लेकिन आपने यूज़ डिस्पोजेबल ग्लास करना है, ठीक है। अब इसको आपने ढककर शेल्फ वगैरह पे छोड़ देना है। इस प्रोसेस पे आपको लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब आप वीक बाद देखेंगे तो आपके पास एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू होगा। छोटे छोटे आपके पास जो है इसकी साइड से शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और 1 वीक बाद फिर आप इसको सनलाइट पे रखेंगे, ठीक है। 1 वीक बाद इसको जो है वो सनलाइट ज़रूरी होगी इसके लिए, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसको जल्दी से परफॉर्म करके आपने मुझे रिज़ल्ट देने हैं। इसको आपने इस तरह से 24 आवर तक छोड़ के उसके बाद आपने रिज़ल्ट चेक करना है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट मी।